اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الذات الساری فی جمیع الآثار والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور پھر قبول کیا اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے بہت اچھی طرح پروان چڑھانا، اور اس نے اس کا کفیل بنایا زکریا علیہ السلام کو۔ جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے مریم علیہ السلام کے محراب میں تو اس کے پاس پاتے کچھ کھانے کی چیزیں۔ ایک دن پوچھ ہی لیا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ مریم علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے پاس سے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ناظرین، یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ پھر قبول کیا اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے بہت اچھی طرح پروان چڑھانا، اور اس نے اس کا کفیل بنایا زکریا علیہ السلام کو۔ حضرت حنا نے حضرت مریم کو ہیکل میں داخل کیا تو وہاں موجود خدمتگاران مسجد میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی پرورش و کفالت کرتا ہے۔ ہرگز ہر کوئی حریص تھا کہ میں تنہا اس کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے، اور مزید برآں وہ بچی کے خالو بھی تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی الشبہ بن فاقوس حضرت حنا کی بہن تھیں، اس لیے ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ اس بچی کو کفالت کا حقدار بنے۔ سب نے مشورہ دیا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے، اور جس کا نام قرعہ میں نکلے وہی اس کی کفالت کرے گا۔ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا، چنانچہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ ناظرین، محقق و عالم دین حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے مسجد کا ایک محراب یعنی حجرہ منتخب کیا۔ محراب کا لغوی مطلب ہے اکرم و موضع فی المجلس، مجلس میں جو سب سے زیادہ باعزت جگہ ہو اسے محراب کہتے ہیں۔ عموماً اسی حجرہ محراب کو حجرہ عبادت کو محراب کہا جاتا ہے، جو سطح زمین سے کچھ بلند بنایا جاتا ہے اور جس میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔
हैकल सुलेमानी के इर्द गिर्द हैकल के खादमों और चिल्ला कशों के लिए जो कमरे बने हुए थे, उन्हीं में से एक में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मशगूल इबादत रहा करती थी। रूहुल मानी और सीरत अंबिया इकराम में लिखा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सारा दिन इबादत में मसरूफ़ रहती और रात को हज़रत ज़करिया उन्हें अपने घर लाते और वो रात अपनी खाला के यहाँ बसर करती। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब वजदा इंदहा रिज़्क़न, जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल होते मरियम अलैहिस्सलाम के महराब में तो उसके पास पाते कुछ खाने की चीज़ें। यानी जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो उनके यहाँ तरह तरह के फल रखे पाते। गर्मी के फल सर्दी में और सर्दी के फल गर्मी में। बाज़ उलमा ने रिज़्क़ का मतलब इल्म भी बताया है। बाज़ ने फरमाया है कि उनके पास सहाइफ थे जिनमें दीन के अहकाम और इल्मी मसाइल लिखे होते थे, लेकिन पहला कौल ही सबसे ज़्यादा सही है। नाज़रीन, हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ अमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फलों का होना औलिया की करामत पर दलालत करता है। जस्टिस रिटायर्ड पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे उलमाए अहले सुन्नत ने औलिया किराम की करामतों का बरहक होना साबित किया है, क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नबी न थी। बेमौसम के फलों का आपके पास पाया जाना आपकी करामत थी। सिर्फ मुतज़िलियों ने करामात औलिया का इनकार किया है और आज भी कई उनके हमनवा अहले सुन्नत होने का दावा करने के बावजूद करामत का इनकार करना अपने उस इल्म का कमाल समझते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि एक औरत वलिया का मकाम पा सकती है और उससे करामत का ज़हूर भी हो सकता है। खुसूसी रिज़्क़ उनकी करामत थी। ये कोई ऐसी वैसी करामत नहीं थी, बल्कि ऐसी करामत थी कि अल्लाह का पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैरान रह जाता था और पूछा, काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये क्या है और कहाँ से आता है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिला हैरानी और इंतहाई संजीदगी से जवाब देती हैं, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। फरमाती है ये सब अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। नाज़रीन, यहाँ पर मुतज़िला का जिक्र हुआ है। वो कौन थे? उम्मत मुस्लिमा में 5 बड़े फिरके हुए हैं। इनमें से एक मुतज़िला भी है। वो 5 ये हैं: सुन्नी, खारिज, शिया, मुतज़िला और बातनिया। मुतज़िला का लग़वी मतलब है वो लोग जो अलग हुए। ये फिरका दूसरी सदी हिजरी में वजूद में आया। इसका बानी एक ईरानी नज़ात वासिल बिन अताल ग़ज़ाल हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था। एक दीनी इख्तिलाफ की वजह से हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जमात से वो अलग हो गया। उसका सबसे बड़ा पैरोकार अमरू बिन अबीद था। इन लोगों को अहले सुन्नत वल जमात के अकायद से अलग हो जाने की बिना पर ही मुतज़िला कहा जाता है। मुतज़िला के मज़हब की बुनियाद अक़ल पर है। उन लोगों ने अक़ल को नकल पर तरजीह दी है। अक़ल के खिलाफ कतियात में
तावीलात करते हैं और ज़न्नियात का इनकार कर देते हैं। अल्लाह ताला के अफ़ाल को बंदों के अफ़ाल पर क्यास करते हैं। बंदों के अफ़ाल के अच्छे और बुरे होने की बुनियाद पर अल्लाह ताला के अफ़ाल पर अच्छे और बुरे का हुक्म लगाते हैं। खल्क और कसब में कोई फ़र्क नहीं कर पाते। इस फ़िरका के नज़दीक कुरान एक मखलूक है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर है। मामूनुर रशीद के दौर में ये सरकारी मज़हब बन गया था। मुतज़िला की फ़िक्री सोच के बुनियादी अनासर यूनानी फ़लसफ़ा से लिए गए हैं, जिसमें मंतक और इस्तदलाल यानी लॉजिक एंड रीजनिंग के ज़रिए इस्लाम को समझना था। वो कहते हैं कि सिर्फ बयान करदा इस्लामी असूल ही आफाकी, रूहानी और मादी सच्चाइयों को जानने का पैमाना नहीं, बल्कि इंसान अपने अक्ल व शऊर और मुशाहदात और तजर्बात की रोशनी में उन्हें जांच सकता है। उनके मुताबिक बहुत सी दुनियावी मामलात में इंसानी अक्ल व शऊर का मकाम अल्हामात से भी मुकद्दम है, क्योंकि इंसान के पास आज़ाद ख्याली यानी फ्री विल है, जिसके शऊरी इस्तेमाल पर पाबंदी या सज़ा नहीं हो सकती। नाज़रीन, हकीकत यह है कि ऐसे ही खुद साख्ता अकायद की बुनियाद पर आज दीन में तरह तरह की मूशगाफियों का रुझान बढ़ गया है, जो तालीमात कुरानी और सुन्नत के सरीहन खिलाफ है। लोग अपना जिस्म अपनी मर्जी का नारा लगाने लगे हैं और इस्लामी माशरे में फसाद का बायस बन रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और उसकी मुसलसल तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज की नशिस्त में इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।